ہم نے آگ کی سامنے والی دیوار کی سمت بڑھنا شروع کر دیا جو مخالف سمت میں بڑھ رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر کو ہم نے نظر انداز کر دیا تھا۔ عقب میں اور دیگر اطراف میں آگ کے شعلے زناٹے دار آوازیں پیدا کر رہے تھے۔ یہ آوازیں اس قدر بلند تھیں کہ ان میں ہیلی کاپٹر تک کی آواز دب کر رہ گئی تھی۔ ظاہر میرے پیچھے تھا۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی رفتار اس لیے کم رہ گئی تھی کہ وہ خوفزدہ انداز میں چاروں طرف بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں کو دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت خوفناک منظر تھا۔ آگ کے شعلوں کی بلندی 30 فٹ سے تو کیا ہی کم رہی ہوگی، اور آگ کی 30 فٹ بلند یہ دیوار مہیب انداز میں ہماری طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ یہی غنیمت تھا کہ درمیان والے حصے میں اس کے آگے بڑھنے کی رفتار قدرے سست تھی اور اس کی بنسبت اس کے سرے والے حصے زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ اگر ہم اس آگ کی لپیٹ میں آ جاتے جس کے امکانات بہت زیادہ تھے تو ہم ایک کربناک اور لرزہ خیز موت سے ہمکنار ہو جاتے۔ ہم اس مقام تک پہنچ گئے جہاں سے سامنے والی آگ شروع ہوتی تھی۔ آگ کافی آگے بڑھ چکی تھی اور وہاں اب راکھ اور چنگاریاں اڑ رہی تھیں، لیکن ان سے خارج ہونے والی حرارت بھی کم نہیں تھی اور مستقل تھی۔ دھوئیں اور حرارت کی وجہ سے ہمارے لیے سانس لینا بھی دوبھر ہو گیا تھا اور ہر سانس کھینچنے کے لیے ہمیں جدوجہد کرنا پڑ رہی تھی۔ ہمارے جسموں کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹ نکلا تھا۔ پسینہ تو خیر پہلے سے بہہ رہا تھا، لیکن اب تو بہتے ہوئے پسینے پر پانی کا گمان ہونے لگا تھا۔ ہیلی کاپٹر ہمارا تعاقب کرتا ہوا وہاں تک آ گیا تھا۔ کبھی وہ نیچے آ جاتا اور کبھی اوپر چلا جاتا۔ بلندی کم اور زیادہ کرنے سے پائلٹ ہمیں یہ باور کروانا چاہ رہا تھا کہ وقت کم رہ گیا ہے، اور اگر ہم نے ہتھیار ڈال دیے تب بھی انہیں ہیلی کاپٹر وادی میں اتارنے اور ہمیں یہاں سے نکالنے میں کچھ نہ کچھ وقت تو لگے گا ہی۔ لہٰذا ہمیں جلد از جلد کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ ان لوگوں کا یہ خیال قطعی احمقانہ اور بیہودہ تھا کہ ہم شکست قبول کر لیں۔ انہیں اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو شکست قبول کر لیتے ہیں۔ اس بات کا اعلان میں اس پر فائر کر کے بھی کر چکا تھا، لیکن بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ہیلی کاپٹر ہم سے کافی بلندی پر معلق تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر پائلٹ کی طرف لہرایا جیسے بائے بائے یا ٹاٹا کہتے وقت لہراتے ہیں، اور خاکستر زمین پر قدم رکھ دیا۔ پائلٹ نے بھی جواباً ہاتھ لہرایا تھا۔ زمین بے حد گرم تھی اور جا بجا اب بھی چنگاریاں باقی رہ گئی تھیں۔ میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا چنگاریوں سے بچتا بچاتا آگے بڑھنے لگا۔ سوختہ زمین پر کچھ آگے بڑھنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ ظاہر میرے عقب میں نہیں آ رہا ہے۔ میں رک کر پلٹا۔ میرا خیال درست تھا۔ ظاہر نے سوختہ حصے پر قدم نہیں رکھا تھا اور نہ ہی اس کا ایسا کوئی ارادہ نظر آ رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اس کی نظریں مجھ سے قدرے بائیں جانب ہٹ کر آگ کی دیوار پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے بلند آواز میں کہا، کیا بات ہے ظاہر؟ تم وہاں کیوں رک گئے؟ ظاہر نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر بڑی بے صبری سے ہاتھ ہلانے لگا۔ بولا، یہاں آئیے جناب، یہاں آئیے۔ اس کے انداز میں کوئی خاص بات تھی۔ مجھے واپس پلٹنا پڑا۔ ظاہر کے نزدیک پہنچ کر میں نے سوالیہ نظروں سے اسے گھورا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا، وہ اس سمت دیکھیے، مجھے کچھ پرندے اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ مجھے ظاہر کی دماغی صحت پر شبہ ہونے لگا تھا، تاہم میں نے اس سمت دیکھا جدھر اس نے اشارہ کیا تھا۔ فضا میں گہرا دھواں چھایا ہوا تھا جس کے پار کچھ دیکھنا ممکن ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا، تمہیں پرندے اڑتے نظر آ رہے ہیں، اور میرے خیال میں اتنے گہرے دھوئیں کے پار تو ہاتھی بھی نظر نہیں آ سکتا۔ ظاہر نے ہکلا کر کہا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جناب، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ میں نے کہا، ظاہر ہے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھے ہوں گے، میری آنکھوں سے تو دیکھنے سے رہے۔ ظاہر نے بجھے ہوئے انداز میں کہا، آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں۔ میں نے کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط بیانی کی ہے، میں تو کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ بولا، کیا سوچ رہے ہیں جناب؟ میں نے کہا، میں اس بات پر غور کر رہا ہوں کہ جس مقام پر تم نے پرندے اڑتے دیکھے تھے صرف وہیں اتنا گہرا دھواں کیوں ہے؟ اس کے علاوہ کہیں بھی اس قدر کالا دھواں نہیں ہے۔ ظاہر مستربانہ انداز میں بولا، اوہ، آپ نے بڑی عجیب چیز نوٹ کی ہے۔ میں نے ظاہر کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہیں معلوم ہے ظاہر کہ آگ میں اتنا کثیف دھواں کب اٹھتا ہے؟ ظاہر نے بلا توقف جواب دیا، جی ہاں، جلنے والی چیز جس قدر کثیف ہوگی دھواں بھی اتنا ہی کثیف اٹھے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک، اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے، جب آگ بجھنے لگتی ہے تو اس وقت بھی دھوئیں کی کثافت بڑھ جاتی ہے۔ ظاہر اچھل پڑا، بولا، اس پہلو پر تو میں نے غور ہی نہیں کیا تھا، اس کا مطلب ہوا کہ… میں نے کہا، ہاں ظاہر، بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر آگ بجھنے کے قریب ہے۔ ظاہر بولا، اور پرندوں کا مطلب یہ ہوا کہ آگ کے پار دریا بھی موجود ہے۔ میں بڑبڑایا، ممکن ہے، لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے، یا پھر شاید ادھر دریا ہی ہو۔ ظاہر بولا، تو آپ سوچ کیا رہے ہیں جناب؟ ہمیں جلدی کچھ کرنا چاہیے، آگ نزدیک آتی جا رہی ہے۔ میں نے کہا، تم خود ہی بتاؤ کیا کریں؟ کیا آگ کے اس طوفان سے گزرنے کی کوشش کریں؟ ظاہر بولا، یہ کوشش تو ہمیں کرنی ہی پڑے گی، ورنہ عقب سے آنے والی آگ ہمیں بھسم کر دے گی۔ میں نے کہا، اور اگر ہم آگ سے گزرتے ہوئے اپنے حواس کھو بیٹھے تو؟ ظاہر بولا، جو کچھ کرنا ہے جلدی کیجیے،
हर गुजरता हुआ लम्हा हमारे मसाइल में इजाफा कर रहा है। मैंने कहा, कोई कदम उठाने से पहले खूब अच्छी तरह गौर कर लो ज़ाहिर, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। ज़ाहिर ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा, गौर करने का वक्त कहाँ है जनाब, जल्दी बताइए क्या करना है। मैंने कहा, मैं यूं तो तुम्हारी सुराई से मुत्तफिक हूँ कि आग से गुजरने के लिए ये मकाम बेहतरीन है, लेकिन ज़ाहिर बोला, माफ़ कीजिएगा जनाब, आप तो यूं गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे हमारे पास वक्त ही वक्त है। मैंने कहा, हमारे पास महज चंद मिनट हैं और इन्हीं चंद मिनट के दौरान हमें सब कुछ करना है। ज़ाहिर ने कहा, तो फिर आप आगे क्यों नहीं बढ़ते, यहाँ खड़े बातें क्यों किए जा रहे हैं। उसका इज़्तिराब बढ़ता ही चला जा रहा था। मैंने कहा, क्या तुम 5 दिन की इस मुसलसल भाग दौड़ से तंग नहीं आ गए हो। ज़ाहिर चीख पड़ा, आखिर आप क्या चाहते हैं, अगर आप ना चले तो मैं अकेला ही आग उबूर करने की कोशिश कर गुजरूंगा। मैंने पुरसुकून अंदाज में कहा, ऊपर देखो ज़ाहिर, हम आग उबूर कर भी गए तो हेलीकॉप्टर फिर भी हमारे सरों पर मुसल्लत रहेगा। ज़ाहिर बोला, तो क्या हम सिर्फ इसलिए कोई जद्दोजहद किए बगैर खुद को आग के रहम करम पर छोड़ दें कि हमारी खुद को बचाने की कोई कोशिश उनकी नज़रों में आ जाएगी। मैंने कहा, अभी तपिश उतनी नहीं बढ़ी कि हम बर्दाश्त न कर सकें, ज़रा सब्र और कर लो, धुआं बढ़ता जा रहा है। मुझे यकीन है कि चंद मिनट के अंदर अंदर हम पायलट की नज़रों से ओझल हो जाएंगे। उस वक्त हम अपनी कोई कोशिश शुरू कर देंगे। फर्ज करो अभी हम दूसरी तरफ पहुंच गए तो मुमकिन है वो झुंझुलाकर हम पर फायरिंग शुरू कर दे और हमारा किस्सा ही तमाम हो जाए। ज़ाहिर बोला, आप ठीक कह रहे हैं जनाब, लेकिन शायद चंद मिनट के बाद हम इस काबिल ही न रहें कि आग को उबूर करने की सख्त जद्दोजहद कर सकें। मैंने कहा, फिर भी हमें उस वक्त तक तो इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि तपिश नाकाबिल बर्दाश्त न हो जाए। ज़ाहिर ने असबात में सर हिलाया। ये हकीकत है कि उस वक्त हमें सख्त आंच महसूस हो रही थी। हमारे चारों तरफ शोलों के जन्नाटे गूंज रहे थे और लकड़ियों और पत्थरों के चटकने की आवाज़ें बड़े तसलसल के साथ सुनाई दे रही थी। पसीना बहने की रफ्तार का ये आलम था कि जैसे किसी ने हमारे सरों पर पानी की भरी हुई बाल्टी उलट दी हो। हर गुजरते हुए लम्हे के साथ तपिश बढ़ रही थी और हमारे गिर्द धुएं में इजाफा होता जा रहा था। शायद अब ऊपर भी आंच पहुंचने लगी थी, इसीलिए हेलीकॉप्टर और ऊपर उठ गया था। बढ़ते हुए धुएं के साथ हमें बार बार खांसी आ रही थी। आग की तपिश से अब हमें अपनी जिल्द झुलसती सी महसूस होने लगी थी। ज़ाहिर ने भर्राई हुई आवाज में कहा, अब कितना इंतजार करेंगे जनाब, अब तो दम भी घुटने लगा है। मैंने कहा, बस अब हम अमल शुरू कर देंगे ज़ाहिर, आग को इस मकाम से उबूर करने के दौरान तुम आगे रहोगे और मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। ज़ाहिर ने फौरन ही आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर मैंने उसका बाजू पकड़कर उसे रोक लिया। मैंने कहा, सुनो ज़ाहिर, जल्दबाजी खेल बिगाड़ देगी। आग के दरमियान से गुजरते हुए हमें अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी का मुजाहरा करना होगा। एक लम्हे का फर्क भी हमें झुलसा कर रख देगा, और अगर आग उबूर करने के दौरान किसी भी लम्हे आग हम पर असरअंदाज हो गई तो फिर हमारी लाशें तक नाकाबिले शनाख्त हो जाएंगी। ज़ाहिर बोला, मुझे मालूम है जनाब, और मैं आग उबूर करने के दौरान हर मुमकिन तेज रफ्तारी का मुजाहरा करूंगा। मैंने कहा, आग की हुदूद में कदम रखने से 1-8 सेकंड पेशतर ही खूब गहरी सांस लेकर अपने फेफड़े ऑक्सीजन से अच्छी तरह भर लेना। अगर आग के दरमियान कहीं सांस लेने की कोशिश की तो मोहलक कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवास मुअत्तल करके रख देगी। ज़ाहिर ने बेसब्री से अपना बाजू मुझसे छुड़ाने की कोशिश की। बोला, मैं समझ गया जनाब, मुझे छोड़िए ताकि मैं आगे चलूं। मैंने ज़ाहिर का बाजू छोड़ा तो वो तीर की तरह आग की तरफ लपका। मैं अपना सूटकेस और बंदूक उठाकर उसके पीछे दौड़ पड़ा। धुआं इतना गहरा हो गया था कि अगर ज़ाहिर मुझसे जरा दूर और निकल जाता तो मैं उसे ही न देख पाता। ऐसे में हेलीकॉप्टर से हमारा देख लिया जाना कतई नामुमकिन था। आग की जिस दीवार को हम उबूर करने जा रहे थे वो बाईं जानिब वाली दीवार थी, और चूंकि आग दरिया की तरफ बढ़ रही थी इसलिए वहां चौड़ाई ज्यादा होने का इम्कान नहीं था। मेरे अंदाजे के मुताबिक वहां आग की चौड़ाई 25 फुट के करीब रही होगी, मुमकिन है ज्यादा भी हो। कुछ देर हम सूखता जमीन पर दौड़ते रहे। शदीद धुएं की वजह से आंखों से पानी बहने लगा था। एक एक सांस लेना दूभर हो रहा था और दम घुटता महसूस हो रहा था। सूखता जमीन गर्म थी और अब भी जगह जगह सुलगती हुई चिंगारियां मौजूद थीं। चारों तरफ रोशन आग की तपिश, आग उगलते हुए सूरज की तमाज़त और पैरों तले गर्म जमीन के अलावा दौड़ने की मुशक्कत ने हमारे जिस्मों से बहने वाले पसीने की रफ्तार मजीद बढ़ा दी। पसीना इस कदर बह रहा था कि अब तो हमारे लिबासों से भी टपकने लगा था। मेरी हिदायत के मुताबिक आग के शोलों में दाखिल होने से कबल ज़ाहिर रुक गया। वो आग से कोई 20 फुट के फासले पर रुका था। उसने वहां रुककर अपने हवास मुज्तमा किए, गहरी सांसें ली और उसके बाद इस तरह दौड़ लगा दी जैसे 100 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेने वाले एथलीट दौड़ते हैं। मैं ज़ाहिर से ज्यादा फासले पर नहीं था। उसे आगे रखने से मेरा मकसद ये था कि अगर उससे कोई गलती सरजद होते देखूं तो उसे टोक दूं, या आग का पुरखतर तूफान उबूर करते वक्त अगर उसे मेरी किसी मदद की जरूरत पड़ जाए, अगर वो मुझसे पीछे होता तो जाहिर है मुझे इल्म ही ना हो पाता कि उस पर क्या बीती।
मैं जानता था कि चारों तरफ से आग में घिरने के बाद दुनिया का मजबूत तरीन शख्स भी अपने आसाब को काबू में नहीं रख सकता। जब आदमी आग में घिरा हुआ हो तो होशो हवास क्यों कर ठिकाने रह सकते हैं। मुझे यकीन नहीं था कि मैं अपने हवास काबू में रख सकूंगा, लेकिन एक मोहूम सी उम्मीद थी कि शायद जाहिर को किसी मौके पर मेरी मदद की जरूरत पड़ जाए और मैं उसके किसी काम आ सकूं। गो कि मेरे दोनों हाथ घिरे हुए थे, एक हाथ में सूटकेस था और दूसरे में बंदूक थी। इन दोनों चीजों समेत दौड़ना और दौड़ते हुए रफ्तार भी कायम रखना बहुत मुश्किल था। ऐसे में किसी की मदद किस तरह की जा सकती थी। ताहम मैंने फैसला कर लिया था कि अगर किसी मरहले पर जरूरी हुआ तो मैं जाहिर की खातिर इन दोनों अशद जरूरी अशिया से दस्तबरदार होने में जरा भी तकल्लुफ नहीं करूंगा। मेरे साथी की जिंदगी के सामने किसी चीज की कोई वक़्त नहीं थी। जाहिर इंतहाई रफ्तार से दौड़ता हुआ आग के मुहीब शोलों में घुस गया। उसके पीछे मैं भी आग में घुसा था। शोले आसमान से बातें कर रहे थे और हमें इस झुलसा देने वाली आग से अपनी रफ्तार के बल पर गुजरना था। हमारे पसीने से भीगे हुए जिस्म और तरबतर कपड़े आग के खिलाफ हमारे वक्ती लेकिन मौसर हथियार थे। मेरी जिंदगी का बेशतर हिस्सा मुख्तलिफ किस्म के मसाइल और मसाइब का सामना करते गुजरा है। मैंने बड़े बड़े हादसात का मुकाबला किया है, कड़े से कड़े वक्त से गुजरा हूँ, लेकिन मुझे ये एतराफ़ करने में कोई बाक नहीं कि अमेरिका की इस नामालूम वादी में भड़कती हुई इस खौफनाक आग को अबूर करने से ज़्यादा दहशतनाक अमल से मैं कभी नहीं गुजरा। कोई मुझे कितनी ही बड़ी रकम क्यों न पेश कर देता, मैं इस अमल से अपनी मर्जी से कभी नहीं गुजर सकता था। मगर उस वक्त हमारे पास कोई मुतबादिल रास्ता नहीं था। हम कोई खेल नहीं खेल रहे थे। मैंने और जाहिर ने महज अपनी जानें बचाने की खातिर अपनी जानें हथेलियों पर रख कर उस आग से गुजरने का नामुमकिन किस्म का काम करने का फैसला किया था। मुझसे चंद कदम आगे दौड़ता हुआ जाहिर आग का एक गोला मालूम हो रहा था। जन्नाटेदार आग के लपकते शोलों के दरमियान दौड़ते हुए हम दुनिया और माफिया से बेखबर हो गए थे। हमें अपना भी होश नहीं रहा था। ये यकीन से कहना मुश्किल था कि हम उस आग से पार भी निकल सकेंगे या ये हमारी जिंदगी की आखिरी जद्दोजहद का आखिरी सफर है जिसका अंजाम हमारी सोख्ता लाशों की सूरत में होगा। हमारे दाएं बाएं, आगे पीछे, सरों के ऊपर और पैरों के नीचे हर तरफ शोलों की लपकती हुई ज़बानें थीं जो हमें चाट जाने के लिए बेताब थीं। शुरू के 3-4 सेकंड तक मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, बस एक दहशत थी, आग के अंदर दौड़ने की दहशत। 3 या 4 सेकंड गुजरने के बाद दफतन मुझे अपना हलक खुश्क होता महसूस हुआ और नथनों में जलन शुरू हो गई। हमारे कपड़ों से पसीने की सारी नमी भाप बनकर उड़ चुकी थी। उस वक्त हमारे पास घड़ी नहीं थी, अगर होती तब भी मैं बता नहीं सकता था कि वो 4था सेकंड था या 5वां जब आग हम पर असरअंदाज होना शुरू हुई। आग की तपिश हमारे जिस्मों के उन सूजे हुए हिस्सों के लिए जो शहद की मक्खियों की जलगार के बायस सूज गए थे, पहले ही बेहद तकलीफ का बायस बन रही थी और अब तो आग की असरअंदाजी का दायरा पूरे जिस्म तक फैल चुका था। सबसे पहले हमारे बालों को आग लगी। जाहिर के सर के बाल जल रहे थे। जब जाहिर के बाल जल रहे थे तो अली यार खान के सर के बाल कैसे महफूज रह सकते थे। कभी सोचा भी नहीं था कि ओलिव हार्वर्ड मुझे इस हाल को भी पहुंचा सकता है कि मैं खुद को नजर आतिश करने पर मजबूर हो जाऊं। ये उसकी बहुत बड़ी फतह थी, लेकिन हमारी फतह ये थी कि हम उसके हाथ न लगे। न तो उसके आदमी हमें जिंदा गिरफ्तार कर सके और न ही हमने उनके सामने हथियार डाले। हम तो अपनी जिंदगियां बचाने की जिद्दोजहद कर रहे थे। इस जिद्दोजहद में अगर हमें मौत को भी गले लगाना पड़ जाता तो गवारा था। उस मौत पर फख्र किया जा सकता है जो जिद्दोजहद करते हुए आए। हमारे बाल जल रहे थे और पूरे जिस्म में ऐसी शदीद तकलीफ थी जैसे किसी ने हमारे जिस्मों की खाल उतार कर जख्मी जिस्म पर नमक छिड़क दिया। कपड़ों ने अभी आग नहीं पकड़ी थी, लेकिन किसी भी लम्हे पकड़ सकते थे और मुझे मालूम था कि अगर कपड़ों में आग लग गई और उसके बाद हम आग के उस दरिया से उधर निकले तो हम सिसक कर दम तोड़ देंगे। जाहिर बुरी तरह चीख रहा था और मैं होंठ भिंचे उसके पीछे दौड़ रहा था। मुंह खोलना इंतहाई खतरनाक था। मालूम नहीं चीखने के बावजूद जाहिर इतनी तेज रफ्तारी से कैसे दौड़ पा रहा था। हमें ताज़ा हवा की, ऑक्सीजन की अशद ज़रूरत थी जिसका वहाँ कोई वजूद नहीं था। चीखने का नतीजा बेहोश होने की सूरत में भी जाहिर हो सकता था। अगले ही लम्हे मैंने जाहिर को लड़खड़ाते देखा। उसकी रफ्तार सुस्त हुई थी। नतीजतन मैं उसे टकराया और उसे अपनी आगोश में भर कर छलांग लगा दी। हम दोनों जमीन पर गिर पड़े। मैंने ये हरकत इस्तरारी तौर पर की थी, वरना उस वक्त इतना होश कहाँ था कि सोच समझ कर कोई कदम उठाया जाता। और इस हरकत के नतीजे में जाहिर के साथ मुझे भी जल कर भस्म हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं आज भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि हम आग के दायरे से बाहर गिरे थे। हमारी 6 या 7 सेकंड की जिद्दोजहद हमारे काम आ गई थी और हम आग का खौफनाक तूफान अबूर करने में कामयाब हो गए थे। हम दोनों लुढ़कते हुए एक खड्ड में जा गिरे थे। खड्ड में गिरने से कबल पूरे जिस्म में शदीद जलन हो रही थी, मगर खड्ड में गिरते ही ठंडक और सुकून का एहसास हुआ। मेरा जिस्म किसी नरम चीज में धंसता चला गया।
फिर थोड़ी देर के लिए मैं भी होशो हवास से बेगाना हो गया। वो गुनूदगी जो मुझ पर तारी हुई लम्हाती थी। उसके बाद मेरा जहन काम करने लगा। मुझे बस ये एहसास था कि अब हम महफूज हैं। ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों महफूज हैं और किस चीज़ से महफूज हैं और हमें क्या खतरा या खतरात लाहक थे। मुझे ये देखने का भी होश नहीं था कि हम कहाँ और किस हाल में हैं। फिर चंद लम्हे गुजरने के बाद जहन पर छाई हुई धुंध मजीद साफ हुई तो मैंने अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया, मगर वहाँ इर्द गिर्द था ही कहाँ। काफ़ी गौर करने के बाद मेरी समझ में आया कि हम किसी नाले में गिरे हैं जो अरसा दराज कबल आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से उसमें काई की गहरी तह जम गई थी। हम काई की उस तह में धंसे हुए थे। कीचड़ नुमा काई की उस तह से नागवार किस्म की तेज बू खारिज हो रही थी, ऐसी बू जो आसाब पर निहायत बुरे असरात मुरतब कर रही थी। लेकिन शायद उसमें कोई ऐसी तासीर पैदा हो गई थी कि उसने हमारे सोख्ता जिस्मों के लिए मरहम का काम किया था। मैंने उठकर खड़े होने की कोशिश की तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये निहायत मुश्किल काम है। जिस हाथ के बल मैंने उठने की कोशिश की थी वो काई के अंदर धंस गया था। सूटकेस भी कीचड़ में लिथड़ गया था और बंदूक भी तबाह हो गई थी। यही गनीमत था कि काई की वो तह ज्यादा मोटी नहीं थी, वरना उसे बाहर निकलना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता। जाहिर मेरे नजदीक ही था और बेहोश पड़ा था। उसे होश में लाना एक अलग मसला था। मैं उठकर खड़ा होने के किसी तरीके पर गौर करने लगा और बिलाखिर मुझे एक तरीका सूझ ही गया। बहुत आसान सा तरीका था और सामने की बात थी, मगर जहनी कैफियत ऐसी थी कि सामने की बात भी बहुत देर में सुझाई थी। मैंने सूटकेस खड़ा किया और उस पर जोर डालकर उठने की कोशिश की। पहली कोशिश में मैं कामयाब नहीं हो सका, इसलिए कि सूटकेस फिसल गया था। मैंने असरे नौ कोशिश की और इस बार मैं कामयाबी से हमकनार हो गया। मैं खड़ा तो हो गया था, लेकिन उस सख्त कीचड़नुमा काई में चलना बिल्कुल ही दूभर हो गया था। अब एक ही सूरत थी और मैंने उस पर अमल किया। खड़े होने के बाद मैंने अपने दोनों हाथ किनारे की तरफ फैलाए और खुद को किनारे की तरफ गिरा दिया। इस तरह उस नाले की गग्गर मेरे हाथ में आ गई और मैंने उसे थाम लिया। अब कोई मसला नहीं रहा था, सिर्फ जाहिर को होश में लाना था और बंदूक और सूटकेस बाहर निकालना थे। मैंने नाले की गग्गर के सहारे खुद को मुतवाजन किया और झुककर सूटकेस उठा के उसे दूसरी तरफ जमीन पर रख दिया। उसके बाद उसी तरह मैंने बंदूक भी उठा ली। खुद नाले से बाहर निकलने से कबल जाहिर को होश में लाना जरूरी था। मैंने बंदूक से जाहिर को हिलाया और उसे जोर जोर से आवाजें दी। मेरे अंदाजे के बरक्स जाहिर ने जल्द ही आंखें खोल दी। उस पर दहशत का गलबा था। आग के दरमियान से गुजरने के तजुर्बे को आसानी से फरामोश करना मुमकिन नहीं था। मैंने कहा, उठो जाहिर, हम आग के तूफान से सही सलामत गुजर आए हैं। उठो ताकि हम इस मतरूक नहर से बाहर निकल सकें। जाहिर ने हड़बड़ा कर उठने की कोशिश की, मगर उसके हाथ पैर दलदल में धंस गए। मैंने बंदूक की नाल जाहिर की तरफ बढ़ाई, कहा, इसके सहारे उठने की कोशिश करो, और वो बदिक्कत तमाम उठने में कामयाब हो सका। उसके उठने के बाद पहले मैं बाहर निकला और फिर जाहिर को भी खींच खांच कर बाहर निकाल लिया। हम दोनों मतरूक नहर के दूसरे किनारे पर उगी हुई झाड़ियों के दरमियान बेसुध होकर गिर पड़े।